and intelligent creature. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but have not paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young nests called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other member of the group. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings but bites them off water its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. Each hatch and grubs come out. Soldiers guard them. Workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses, others give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's car. The ants train it to give honeydew like milk with the touch of their antennae. They milk it just as we milk the cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. एक चींटी आपके द्वारा देखे गए सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीट का नाम बताइए। क्या यह मक्खी है? नहीं, यह नहीं है। क्या यह मच्छर है? नहीं, मच्छर नहीं। तो फिर यह कीड़ा ही होगा। नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह चींटी है, सबसे सामान्य, सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान कीट। चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठी लगती है, लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है। तो हम इस छोटे मेहनती व्यक्ति के बारे में कई तथ्य जानते हैं। और बुद्धिमान प्राणी। चींटियां कई प्रकार की होती हैं। उनमें से सबसे आम हैं काले या लाल वाले। हमने उन्हें तब से देखा है जब हम बच्चे थे, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वे कहाँ रहते हैं? उनके आरामदायक घरों में, जिन्हें घोंसला या एंथिल कहा जाता है। प्रत्येक में सैकड़ों छोटे कमरे और मार्ग हैं। इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अन्य युवावस्था के लिए नर्सरी हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्रब्स। श्रमिकों के पास अपने आरक्षित क्वार्टर हैं। वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। कुछ कमरे इस भोजन के लिए भंडारगृह के रूप में काम करते हैं। सैनिकों के पास अलग बैरक होते हैं।
किसी भी कर्मचारी ने कभी किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। कोई भी सैनिक कभी भोजन की तलाश में नहीं गया। किसी भी कर्मचारी या सैनिक या सफाई कर्मी ने कभी भी किसी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आप देखिए, एक चींटी का जीवन बहुत शांतिपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करता है और समूह के अन्य सदस्यों से कभी नहीं लड़ता। रानी कॉलोनी की पूरी आबादी की मां है। यह लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहता है। इसके पंखों की एक जोड़ी है, लेकिन यह अपनी शादी उड़ान के दौरान उन्हें काट देता है। यह उड़ान गर्मी के दिन में होती है। रानी घोंसला छोड़ देती है और नर चींटी से मिलने के लिए बाहर चली जाती है या हवा में बहुत ऊपर उड़ जाती है। धरती पर लौटने पर यह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती। प्रत्येक हैच और ग्रब बाहर आते हैं। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। कार्यकर्ता उन्हें खाना खिलाते हैं और साफ करते हैं और उन्हें हवा, व्यायाम और धूप के लिए प्रतिदिन ले जाते हैं। 2 या 3 सप्ताह के बाद ग्रब कोकून बन जाते हैं और 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक भोजन या गतिविधि के बिना पड़े रहते हैं। फिर कोकून टूटते हैं और उत्तम चींटी प्रकट होती है। अब यह शिक्षण और प्रशिक्षण का समय है। नई चींटियां पुरानी चींटियों से श्रमिक, सैनिक, बिल्डर, सफाई कर्मी आदि के रूप में अपने कर्तव्य सीखती हैं। एंथिल न केवल चींटियों के लिए बल्कि कुछ अन्य प्राणियों, बीटल, चींटियों की छोटी नस्लों और हरी मक्खी के लिए भी एक घर है। चींटियां क्यों चाहती हैं कि ये विदेशी जीव उनके घोंसलों में रहें? कई कारणों से यह कुछ चींटी की इंद्रियों के लिए सुखद गंध छोड़ते हैं, अन्य मीठा रस देते हैं और कुछ केवल पालतू जानवर हैं या मनुष्यों के खेलने की वस्तुएं हैं, जैसे बिल्लियां और कुत्ते। हरी मक्खी चींटी की गाय है। चींटियां इसे अपने एंटीना के स्पर्श से शहद जैसा रस, दूध जैसा देने के प्रशिक्षित करती हैं। वे इसे वैसे ही दुहते हैं जैसे हम गाय को दुहते हैं। क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? शायद उनके पास है, लेकिन उन्होंने अपनी सीख का सदुपयोग नहीं किया है। वे अभी भी इस छोटे शिक्षक से कुछ चीजें सीख सकते हैं। कड़ी मेहनत, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और सबसे ऊपर जिस भूमि पर वे रहते हैं उसके प्रति दृढ़ निष्ठा।